Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture number one, which came under Unit One for the digital communication, and that lecture is important for your ATC 6 semester student. So. In my as per the unit one, I will cover in my previous videos. I will complete the unit number 3 and 4, and today I start with unit number one. So here we discuss the various topic, that is sampling theory, generation and detection of your PAM signal, type of sampling, drawback and application of your PAM, TDM as per the concept of PAM, and aperture effect. So, as per your sampling theory, what do you mean by sampling theory? Sampling process is to convert the sampling process is to convert the continuous time signal into a discrete time signal. The sufficient number of sample we with the help of your sufficient number of sample, we can reconstruct the original signal again. So the number of samples to be taken depend upon the maximum signal maximum signal frequency present at the present in the input of signal. Clear? So statement of sampling theorem, that is, what do you mean by sampling theorem? A band limited signal of a finite energy which has number of frequencies component higher than fm hertz is completely described by its sample value of uniform interval less than or equal to 1 by 2 fm. इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है, उसको आपने डिस्क्रीट वन में चेंज करना है, तो आप उसके लिए सैम्पलिंग थ्योरम यूज करोगे. तो एज पर द सैम्पलिंग थ्योरम यू कैन राइट एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 fm. fs is called your sampling rate, ठीक है, that should be greater than equal to 2 fm. It means maximum frequency present in your original signal. Clear? So if you describe that parameter in the form of your time, so that is a sampling time, which is t is equal to 1 by 2 fm, and as per your timing phenomena t is equal to 1 by f होता है. तो मैंने आपका सैम्पलिंग रेट क्या है, यानी कि जैसे मान लो आपकी एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है, उसको जब आप डिजिटल में चेंज कर रहे हो, तो जो एक इंटरवल आएगा दैट इज कॉल्ड योर टीएस, और कैन से ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन को आपने सैम्पलिंग रेट की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, और जो ऊपर वाला एनवल्प है वो आपका क्या है, डिजिटल सिग्नल है, ठीक है. और ये जो ड्यूरेशन ली हुई है आपने, वो आपका क्या है, ड्यूरेशन बिटवीन द सैंपल, दैट इज कॉल्ड योर टीएस. सो टीएस इज ऑलवेज लेस देन द 1 by 2 fm maximum frequency present in the signal. तो ये टॉपिक अगर आप उन्हीं पैरामीटर को एज पर द फ्रीक्वेंसी डिफाइन करो, तो आप क्या लिखोगे, जो पिछला पैरामीटर था दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम था, तो टाइम के अकॉर्डिंग टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 fm हुआ. लेकिन अगर आप टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दो, यानी कि टाइम डोमेन को आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दिया, तो जहां आपने टीएस लिखा था 1 by ts, उसको आपने fs में चेंज किया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 fm. इट मीन्स जो सैम्पलिंग रेट होगा, दैट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू maximum frequency present in the signal. So a band limited signal of a finite energy which has number of frequencies component higher than fm hertz may be completely recovered from the knowledge of its sample taken at the rate of 2 fm per second. क्लियर? सो मतलब कि ये सैम्पलिंग थ्योरम के लिए कंडीशन मस्ट है कि आपका जो एफ एस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 fm होना चाहिए. अगर ये ऐसा होता है, तो आप उस फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट को जिनको आपने डिजिटल में डिस्क्रीट में चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ योर सैम्पलिंग थ्योरम, उनको आप इजिली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट डिस्टोर्शन और विदाउट इंटरफेरेंस और विदाउट ओवरलैपिंग. इफ यू फॉलो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना, दैट इज एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 fm. ठीक है, तो मैंने ये अपने टाइम डोमेन में एक सिग्नल लिया एक्स ऑफ टी, जिसको मैंने टाइम डोमेन में कुछ इस वजह से दिखा रखा है. लेकिन अगर मैं उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन लूं, तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा. उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है दैट विल बी इक्वल टू योर fm. So here we mention omega m, here we mention minus omega m. Clear? But if the signal is band limited, अगर सिग्नल बैंड लिमिटेड है, तो क्या होगा, आपका ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या होगा, आपका ओमेगा होगा. तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो आपने किसी सिग्नल की
को सैंपल आउटपुट में चेंज करना है, तो सैंपल आउटपुट में चेंज करने के लिए आपने किसी इम्पल्स फंक्शन से अपने इनपुट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. दैट इज कॉल्ड योर इनपुट फंक्शन और दैट इज कॉल्ड योर impulse train function. That is also function of time here and that is also function of time here. So impulse function को अगर आप लिखेंगे, that is a regular interval of timing pulses. So here we mention ts, 2ts, and the opposite side you can mention minus ts and minus 2ts. Clear? So mathematically in the form of time pulses of your impulse train, अगर आप इसे मैथमेटिकल टर्म्स में ओपन करेंगे तो उसे लिखेंगे 1/ts बाहर लिखा जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ 2 ओमेगा एस टी plus 2 cos of 2 omega st, then plus 2 cos of 3 omega st and so on. क्लियर? सो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब अगर आपने इनपुट को डिस्क्रीट में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ योर सैम्पलिंग थ्योरी और सैंपल आउटपुट में चेंज करना है, तो आप अपने इनपुट को किसी इम्पल्स ट्रेन फंक्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैंने इनपुट को इम्पल्स ट्रेन फंक्शन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो उसके लिए मैंने एक मल्टीप्लायर यूज किया है. उसकी इनपुट में मैंने आपका इनपुट सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल वो दिया है प्लस योर इम्पल्स ट्रेन फंक्शन डेल्टा टीएस. तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपकी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होके जी ऑफ टी की फॉर्म में शो होगी. तो आप क्या करोगे, आपका जो सिग्नल आपका जो इनपुट है उसका एम्पलीट्यूड एज पर योर इम्पल्स ट्रेन क्या होगा, चेंज. आपका इम्पल्स ट्रेन फंक्शन जो है दैट विल बी चेंज एज पर योर इनपुट सिग्नल. यानी कि जहां आपका इम्पलीट्यूड का इनपुट का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वहां इम्पल्सेस का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और जहां घट रहा है वहां इम्पल्सेस का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. सो दैट शो योर वन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन हियर, दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. क्लियर? ठीक है. अब मैंने उन पैरामीटर को टाइम डोमेन की फॉर्म में ओरिजिनल मैथमेटिकली फॉर्म में सोल्व किया है. तो अब जी ऑफ टी आपका क्या है, इनपुट इनटू में इम्पल्स ट्रेन फंक्शन. लेकिन इम्पल्स ट्रेन फंक्शन को आपने प्रीवियस स्लाइड में लिखा है 1 प्लस 2 कोस ओमेगा एस टी 2 कोस 2 ओमेगा एस टी प्लस 2 कोस 3 ओमेगा एस टी. तो आपका इनपुट फंक्शन इस डेल ऑफ टी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप उसी फंक्शन को पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर दीजिए. जी टी का क्या बनेगा, जी ऑफ ओमेगा और 1/ts तो बाहर ही रहेगा और इसका क्या बन जाएगा 1/ts का x ऑफ ओमेगा प्लस x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस. एक बार ये फैक्टर जो है अगर कोस की फॉर्म में खुलेगा तो एक बार फैक्टर उस फ्रीक्वेंसी से माइनस होगा फिर प्लस होगा. सेम एज फॉर 2 ओमेगा एस एंड सेम एज फॉर 3 ओमेगा एस. सो हियर वी राइट x minus 2 omega s plus x omega plus 2s. Again you mention x minus omega minus 3 omega s plus x omega plus 3 omega s and so on. So आपने क्या किया, उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया. अब मैंने उस सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है. तो ये देखिए जो फर्स्ट सिग्नल है, देखिए आपका जो फर्स्ट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल, तो वो ओमेगा एम और माइनस ओमेगा एम से आपका क्या हो गया, डिफर हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट आपका क्या निकला है, एक बार जो कंपोनेंट है वो प्लस ओमेगा एक्स होगा और एक बार माइनस ओमेगा एस होगा. ठीक है. तो वही कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है वो शो कर रहा है ओमेगा माइनस, ये वाला जो कंपोनेंट है ओमेगा माइनस ओमेगा एस और ओमेगा प्लस ओमेगा एस, और ये वाला क्या शो कर रहा है omega minus 2 omega s and omega plus 2 omega s 2s. So here same component show by your negative side. So that is a frequency response, or you can say frequency your sample output will be present in your frequency domain representation. ठीक है. तो हमें क्या मिला, एज पर योर एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM, जी ऑफ ओमेगा विल रिपीट periodically विदाउट ओवरलैपिंग. तो आपने देखा है कि अगर आपने उस फंक्शन को, जब आपने इस फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में करके दिखाया है तो आपके बीच में एक गैप आ रहा है. लेकिन ये गैप कब आया है, जब आपने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या यूज किया सैम्पलिंग थ्योरम के लिए, एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM. ठीक है. इट मींस आपका सिग्नल कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है. Clear? It means that will be proves that some particular condition. Clear? So by the use of, so the spectrum g of omega extended up to infinity frequency, but our purpose is to extract original spectrum x of omega out of from g of omega. लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि अब हमने रिसीवर साइड पे वही सेम पैटर्न रिकवर करना है. तो रिकवर करने के लिए अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा विदाउट ओवरलैपिंग एंड विदाउट इंटरफेरेंस. क्लियर? ठीक है. अब हम क्या करेंगे,
तो ये मैंने कुछ दिखाई हुई हैं. That is a phenomena of your aliasing also, where the aliasing should be occur in your sampling theorem. If the fs should be greater than equal to greater than 2fm, तब तो ये जो जितने भी फ्रीक्वेंसीज डोमेन के कंपोनेंट आ रहे हैं, जो मैंने पिछला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया था, ये कंपोनेंट आपका शो करता है ओमेगा माइनस ओमेगा एस एंड ओमेगा प्लस ओमेगा एस. क्लियर. और ये वाला कंपोनेंट ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस, ओमेगा plus 2 omega x, and then again so on. Here the reverse replica on your reverse side show here, but in that you will be create a gap among your various component or various harmonics. So उसके लिए कंडीशन क्या है, आपका fs जो है वो fs क्या होगा, वो 2fm से ज्यादा होगा. एक्चुअल में इस कंडीशन को हम बोलते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया. ठीक है. अगर आप नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करोगे, वो कंपोनेंट कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा. लेकिन अगर इस एनालिसिस से आप रोंग जा रहे हो, तब वो कंपोनेंट में क्या हो जाएगी, आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो अगर आपका एफ एस इक्वल है, तो ये जो वेव्स हैं डोमेन्स के अंदर, वो आपस में क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं. इट मीन उसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपस में टच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं हुए, नए इंटरफेस हुए हैं उनके अंदर. ठीक है. और अगले बार में क्या किया आपने, उस रेट को रिवर्स कर दिया, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू लेस देन 2fm. तो आपका जो कंपोनेंट के अंदर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है. सो दैट पास शोज योर ओवरलैपिंग here. So it means यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. इट मीन्स यहाँ पे अलाइजिंग की प्रॉब्लम आ गई है. सो अलाइजिंग की प्रॉब्लम आपकी सिग्नल की प्रोसेसिंग के अंदर ना आए, उसके लिए वन थिंग इंपॉर्टेंट है कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2fm होना चाहिए, ना कि लेस देन होना चाहिए. जैसे ही वो लेस देन होगा, उसके अंदर अलाइजिंग का इफेक्ट आएगा. इट मीन्स आपके सिग्नल ओवरलैप होंगे और आपका सिग्नल जो है वो डिस्टोर्ट होगा. और ऐसे डिस्टोर्टेड सिग्नल को जब आप रिकवर करोगे एट द रिसीवर साइड पे और रिकंस्ट्रक्ट करोगे, तो दैट इज अ वेरी यू कैन से cumbersome process, and at the output you are not contain your original signal as you're giving at the transmitter side. Again, you can come with your generation and detection of your PAM signal. So before start the generation and detection of your PAM signal, we are came under with the, here we cover the various topic under your PAM signal. We can also explain the number of sampling phenomena, use number of sampling like flat top sampling, natural sampling, and your impulse sampling. And also you can say reception of your PAM signal, and transmission bandwidth of PAM, and drawback of PAM. So I can cover these topic one by one. So as per your PAM, in the PAM system, width and the timing of the pulse maintained constant. Its name is PAM. It means in which the width and amplitude, width and time will be constant, but the amplitude of the pulse is varies in accordance with your instantaneous value of the analog signal. So as per your simple modulation theory, you can use one modulating signal and one carrier. So your carrier will be modulated as per your input signal. So here the carrier we use as an impulse train function. So your your carrier impulse train function show by your regular interval of time pulses. ठीक है. Its time, its amplitude vary as per your input wave. Clear. So here we mention, but the amplitude of each pulse is varies in accordance with the instantaneous value of the analog signal. Clear. So sampling theorem provides us two bases to convert the analog signal into a digital signal. Clear. And the signal are sampled at a regular interval such that sample is proportional to the amplitude of the input signal at the sampling instant. क्लियर. तो जब आपने आपने पैम यूज किया, दैट इज पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. पल्स एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि आपका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, विड्थ और टाइम आपकी कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है. एम्पलीट्यूड किसका वेरी करेगा, अब आप इसमें आपका इनपुट तो मैसेज सिग्नल होगा जो इस फॉर्म में शो हो रहा है, दैट इज. और जो ये वाली चीजें हैं दैट इज इम्पल्स फंक्शन. ठीक है. अगर उस इम्पल्स फंक्शन का आप टाइमिंग इंस्टेंट 0 लेके चल रहे हो, तो वो बिल्कुल एक लाइन की फॉर्म में शो हो रहा है. क्लियर. अगर उसका कुछ टीएस इंटरवल यहाँ शो किया हुआ है आपने, तो वो उसका टीएस इंटरवल से वो जो है वो पल्सेस ऑन और ऑफ इंटरवल से, रेगुलर इंटरवल से क्या होंगी, ऑन ऑफ होंगी. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इनपुट सिग्नल को किसी इम्पल्स फंक्शन के साथ वेरी करवा रहे हैं, या आपका इम्पल्स फंक्शन इस इनपुट सिग्नल के साथ वेरी कर रहा है, तो दैट विल बी क्रिएट अ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट एट योर आउटपुट साइड. ठीक है. तो लेकिन मैंने इस फिगर के अंदर मैंने अपने पहले 3 सैम्पलिंग फिनोमेना क्लियर किए हैं. सो दैट इज कॉल्ड योर इम्पल्स सैम्पलिंग,
that is called your natural sampling and that is called your flat top sampling. तो impulse sampling में आपका जो time duration of ts है tau that will be equal to 0, so that will be show by your single line. अगर आप एक लाइक इम्पल्स ट्रेन फंक्शन शो करते हैं उसके अंदर एक सिंगल लाइन की फॉर्म में लेते हैं, जो सिंगल लाइन्स है फंक्शन है दैट इज कॉल्ड योर इम्पल्स फंक्शन. इफ द इम्पल्सेस ऑफ योर इम्पल्स, जो इम्पल्स फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है एज पर योर इनपुट सिग्नल, सो दैट इज आल्सो अ पैम मॉडरेटेड आउटपुट. लेकिन अगर आप उन इम्पल्सिस को किस टीएस इंटरवल से ले रहे हो तब भी वो टीएस जो इंटरवल है दैट बी फॉलो योर modulating envelope. It means your impulse train function that will be behave as a carrier and the carrier wave change according to your input. क्लियर. तो जहाँ इनपुट तिरछी हो रही है वहां आपका ये वाला लाइक जो है वो लाइक आपका इम्पल्स फंक्शन है वो भी इंक्लाइन प्लेन में आ रहा है. दैट इज कॉल्ड योर नेचुरल सैम्पलिंग. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग? यहाँ पे आपका जो इम्पल्सेस का जो कर्व है ऊपर वाला वो आपके इनपुट सिग्नल के एनवलप को फॉलो कर रहा है, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है वो क्या आ रहा है आपका फ्लैट आ रहा है. क्लियर. तो इसमें क्या है अब इस और इसमें क्या रहेगा आपका. लेकिन अगर आप मान लो जब इसको आप ट्रांसफर करोगे रिसीवर साइड पे रिसीव करते हो तो कई बार क्या होता है कि यहाँ नॉइज ऐड हो जाती है. क्लियर. तो उस नॉइज को आपको अलग करना दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन केस ऑफ योर नेचुरल सैम्पलिंग. बट अगर आपकी फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में नॉइज ऐड होती है तो ये एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा जो अलग सा पोर्शन है वही आपको अलग से दिखाई देगा. तो रिसीवर साइड पे आप उस नॉइज को इजीली क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर यहाँ नॉइज ऐड होती है तो आपको पता नहीं चलता कि नॉइज आपके इम्पल्स में है या फिर आपके इनपुट में है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. लेकिन इसमें वो नॉइज का फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होने के कारण वो नॉइज अलग से आपको दिखती है. तो उस नॉइज के एम्पलीट्यूड को आप सिग्नल के एम्पलीट्यूड से जब मैथमेटिकली एनालिसिस करते हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिसीवर साइड पे क्या हो जाएगी आपकी extract हो जाएगी. So that is a flat top sampling in which every samples will be flat here. Clear. So that is a flat top sampling. Again depending upon the different type of sampling technique we have different types of samplers. ठीक है. One is called impulse samplers, natural sampler and flat top samplers. Clear. Impulse sampling is not used for information exchange because it is very low power, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन फंक्शन है टाउ वो इक्वल टू 0 मैंने बताया है, तो वो हमारी लो पावर पे काम करती हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर पाती एज पर योर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ठीक है. लेकिन जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है उसका क्या है जो आपकी मोस्टली वाइडली यूज की जाती हैं ड्यू टू नॉइज मिटिगेशन कैपेबिलिटी. नॉइज मतलब मैंने बताया है आपको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में अगर आपके इस पोर्शन पे नॉइज आती है तो रिसीवर साइड पे हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. That is called your noise mitigation capability of your flat top sampler. So here we also show a one figure for your flat top sampler which can generate your flat top pulses, and that flat top pulses we can multiply with your input signal. So as per your PAM, your flat top pulses can be generated by the use of flat top sampler and its amplitude will vary as per your input signal. Clear. So here we use one sampler switch and also use a discharge switch, and one capacitor is also used here. So here we giving your input x of t your sampler. ठीक है. तो sampler switch क्या करेगा, that will be generate a regular interval of time duration pulses t on tau. T of also stand for tau, so tau for on and tau for on. That is called your pulse duration, and total period is called your sampling period. Clear. So the so here we mention here we also mention कि जब आपका ये पल्स ऑन होगा, अगर आपका ये पल्स ऑन का पीरियड से आता है तो ये स्विच ऑन होगा. अगर ये स्विच ऑन है तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, चार्ज हो जाएगा. क्लियर. लेकिन अगर ये स्विच ऑफ है तो आपका जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है वो इस डिस्चार्ज स्विच के थ्रू क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होगा. क्लियर. सो ये इस वेव के अकॉर्डिंगली अपना फंक्शन हेल्ड करेगा. सो द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी इज वेरी मच लो, so this will be generate a flat top sampler. It means क्या है कि अगर हम आरसी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लो लेंगे तो क्या होगा, जो उसका ऑफ पीरियड होगा, ठीक है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने की बजाय किसमें चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंट फ्लैट टॉप सैंपल में चेंज होएगा. तो आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ क्या मिलेंगे, टाइम पल्सेस मिलेगी विद प्रॉपर ऑन एंड ऑफ पीरियड.
क्लियर। अगर हम RC टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा लेते तो ये पल्स हमें कुछ इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज होके मिलती है यहाँ पे, तो प्रॉपरली ऑफ नहीं मानी जाती। लेकिन प्रॉपरली ऑफ तभी मानी जाएगी जब उसका RC टाइम कांस्टेंट क्या बहुत ज्यादा स्लो है, जो कि आपका रीडिंग्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल टी ऑफ पीरियड को शो कर रहा है। क्लियर, ठीक है। सो फ्लैट ऑफ सैम्पलर इट यूजेस अ सैंपल एंड होल्ड सर्किट, clear, and capacitor charges and hold the value of signal as per TS second, which we are told earlier. And also we can follow the same here mention. So before start with your sample, you can generate the flat top sampler with the help of circuit, which we can discuss earlier part of the slide. So again you can come with your PAM modulator. What do you mean by PAM modulator? Here the we can use the LPF filter. Before आपकी कोई भी एनालॉग इनपुट है उसको आपने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट में चेंज करना है, तो आपको एक इनपुट चाहिए और एक कैरियर चाहिए। तो कैरियर यहाँ पे पल्सेस की फॉर्म में है और इनपुट को आपने मल्टीप्लायर को देने से पहले एलपीएफ को दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर लो पास फिल्टर विच कैन चेंज द इनपुट सिग्नल इनटू योर बैंड लिमिटेड सिग्नल, और यू कैन से दैट इज आल्सो अवॉइड योर अलाइजिंग इफेक्ट, और it set the frequency up to frequency FM। क्लियर। तो यहाँ पे आपने पल्स जनरेटर की हेल्प से, यानी कि जो आपने सैम्पलर लगा रखा है वो यहाँ लगाएंगे, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पल्सेस जनरेट करेगा। वो पल्सेस के एम्पलीट्यूड को, वो पल्सेस का एम्पलीट्यूड वेरी होगा एज पर योर इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगी। अगर उस आउटपुट के अंदर अगर आपका वो जो पल्सेस है वो आपका लाइक इंक्लाइड प्लेन में आ रहा है, उसको फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में चेंज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर पल्स शेपिंग सर्किट की हेल्प से आपका यहाँ पे फ्लैट टॉप सैम्पलर की फॉर्म में क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका एनालॉग इनपुट है, आपने इसको कोई पल्स ट्रेन फंक्शन दिया था, तो आपका पल्स ट्रेन फंक्शन का एम्पलीट्यूड जो है एज पर द फिगर वो आपके इनपुट के एम्पलीट्यूड के साथ अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। इट मीन जहाँ ये इंक्रीज हो रहा है वहाँ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, जहाँ ये डिक्रीज हो रहा है वहाँ एम्पलीट्यूड नेगेटिव वाट की तरफ आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड योर एनालॉग इनपुट और दैट इज कॉल्ड योर पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड आउटपुट। So again you can come with your reciprocation part. In reciprocation part you can receive here pulse amplitude modulated signal. So pulse amplitude modulated signal value is represented by your x of st. Clear. Here we apply a holding circuit, then you apply the output of holding circuit to your LPF filter, and also here we getting your original one same as you transmit at your PAM side. So the PAM signal is passed through the holding circuit, then it pass through the filter. So the holding circuit provide hold the value of the amplitude of input signal till the next pulse is arrived, and the LPF provide your smoothen out the signal. It means which frequencies component is greater than FM, that will be extract out. Clear. So that is a holding circuit, you can say sample and hold circuit. Its figure show we can use one switch here and one capacitor here. Clear. We are giving the PAM modulated output at the input side. You can switch on or off at a regular interval of times. According to that your capacitor is charge and discharge phenomena. You can use here various type of holding circuit, zero order, first order and second order. First and second order, which we can discuss in the later part of the slides. So also we use here zero order holding circuit. So here we use a switch S. When the switch S is closed, after the interval the pulse, then it is open at the end of the pulse. यानी कि जब आपका पल्स आएगी तो स्विच ऑन हो जाएगा, और जैसे ही पल्स जाएगी स्विच क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। Hence the capacitor is charged to a pulse amplitude value and hold the value till the next pulse is arrive. क्लियर। और जो एलपीएफ है वो आपकी आउटपुट को क्या करता है, स्मूथन करता है। ठीक है, स्मूथन करता है, हमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपके आउटपुट पे कोई कंपोनेंट एफएम से छोटा है या बड़ा है उसको ये निगलेक्ट कर देगा और आपकी आउटपुट को विदाउट ओवरलैपिंग की फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो जैसे मान लो मैंने एनवलप बनाया था, उसने बोला है जैसे अगर आप ये देखिए यहाँ पे मैंने एक आउटपुट शो किया आपका एज पर योर फ्लैट टॉप सैम्पलर, दैट इज सेम फिनोमेना व्हिच यू कैन यूज इन योर पैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो पल्स का एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है एज पर योर इनपुट सिग्नल, सो दैट इज अ टाइप ऑफ योर पैम मॉड्यूलेटेड आउटपुट।
ठीक है। तो उसने बोला कि अगर हमने इस सिग्नल को रिकवर करना है दोबारा विद हेल्प ऑफ रिसीवर, तो आप ये आउटपुट को किसको दोगे, सैंपल एंड होल्ड सर्किट विच यू कैन यूज एट द रिसीवर साइड। ठीक है। तो जब रिसीवर साइड को दोगे तो उसने बोला सैंपल एंड होल्ड सर्किट होल्ड द वैल्यू टिल द नेक्स्ट, ये यहाँ तक इस वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ तक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन फॉर नेक्स्ट पल्स ये यहाँ तक कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन फॉर नेक्स्ट पल्स ये यहाँ तक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा टाइम के लिए क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो वही फिनोमेना मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करेगा, उन आउटपुट्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा। हेयर वो क्या कर रहा है, यहाँ इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है। बिफोर द नेक्स्ट पल्सेस अराइव, अगेन द नेक्स्ट पल्सेस अराइव, अगेन द नेक्स्ट पल्सेस अराइव। तो आपको आप उसकी हेल्प से ओरिजिनल सिग्नल क्या कर लोगे, इजिली रिकवर कर लोगे। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट कम इधर बैंडविड्थ। तो फिर पैम सिग्नल की बैंडविड्थ को के लिए उसने लिखा हुआ है कि जो टाउ ड्यूरेशन ली हुई है, जिसको आपने बोला था पल्स ड्यूरेशन, दैट विल बी वेरी मच लेस देन योर सैम्पलिंग पीरियड। क्लियर। लेकिन आप ये भी बोल रहे हो एज पर योर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। एफ एस की जगह आप 1/TS लिख सकते हो। ठीक है। और टीएस को अगर एफ एम की फॉर्म में करोगे तो टीएस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 FM। हमने ऊपर क्या बोला है कि टाउ जो है वो आपका टीएस से बहुत ज्यादा स्मॉल है। सो टीएस जो है आपका सैम्पलिंग इंटरवल है वो टाउ से तो बड़ा होगा, लेकिन एफएम से क्या होगा, आपका छोटा होगा। क्लियर। तो आप अगर टाउ पीरियड के लिए वो ना, तो टाउ पीरियड के लिए ऑफ होगा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, 1/2 टाउ के इक्वल। It means bandwidth is greater than equal to 1/2 tau. So here we mention tau is less than equal to 1/2 FM. उसी को मैंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम इसे पूरे एक्सप्रेशन से कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन क्या निकलता है कि बैंडविड्थ इज ग्रेटर देन योर एफएम, आपकी एफएम से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये बैंडविड्थ आपने किस केस में निकाली है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में निकाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए एज पर योर एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ। क्लियर। सो ये कंक्लूजन निकलता है, फॉर दिस कंक्लूजन द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर पैम सिग्नल इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू योर एनालॉग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ योर पैम सिग्नल, that is sometime a white Gaussian noise will be added in your flat top sampler। लेकिन उसने बोला कि फ्लैट टॉप सैम्पलर भी क्या करता है कि दैट विल बी कैरी एडवांटेज दैट इज कॉल्ड योर नॉइज मिटिगेशन कैपेबिलिटी। तो आप उस नॉइज को इजीली क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट करके रिमूव कर सकते हो एट द रिसीवर साइड पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसको जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे इनपुट का कुछ पार्ट भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हमारा इनपुट जो वैसा सिग्नल मिलेगा वो हमें एट द रिसीवर साइड पे सेम नहीं मिलेगा जो हमने ट्रांसमिट किया था। यानी कि हमने किसी सिस्टम को हम 100% नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसने फिर भी नॉइज को रिमूव करने के बाद हमें लाइक 95-96 के अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दिया है। क्लियर। तो ये नॉइज की प्रॉब्लम तो उसके अंदर रहेगी, चाहे वो फ्लैट टॉप सैम्पलर है चाहे वो आपका इम्पल्स सैम्पलर है। एप्लीकेशन ऑफ पैम क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस बेसबैंड चैनल, मतलब कि हम पैम सिग्नल को शॉर्ट डिस्टेंस में यूज करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन के अंदर एज एन टीडीएम यूज करते हैं, या फिर ए टू डी कन्वर्टर इन योर कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर यूज करते हैं। तो कई बार इनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। Next, you can come with your TDM. What do you mean by TDM? TDM stand for your time division multipliers. क्लियर। सो इसमें क्या करते हैं हम कि द सैम्पल पैम वेवफॉर्म इज ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मान लो आपने पैम इनपुट ली थी तो वो कहीं कहीं ऑफ पीरियड आ रहा है उसका, तो अगर हम उन ऑफ पीरियड्स को यूटिलाइज कर लें, यानी कि उसके अंदर मैं किसी और सिग्नल के सैंपल को ट्रांसफर कर दूं, तो जो आपका ऑफ पीरियड है वो आपका यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है। आपने जब पैम को देखा है, पैम के जहाँ एक बार वो वेव टी ऑन की फॉर्म में आ रही है फिर टी ऑफ की फॉर्म में आ रही है, तो आपका मैनी टाइम टी ऑफ आ रहा है, तो उससे आपकी बैंडविड्थ क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर उसको आपने उस बैंडविड्थ को आपने यूटिलाइज करना हो एज पर योर टीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या किया, जब उसका ऑफ पीरियड आया था, ऑफ टाइम आया था, उसमें हमने किसी और सिग्नल्स के सैंपल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, सो द इंटरलिविंग of the sample from the several signal into a single waveform is called your TDM। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो किया हुआ है, ये आपका सिग्नल 1 है और ये वाला सिग्नल 2 है। तो जैसे मान लो सिग्नल 1 को आपने इम्पल्स फंक्शन की फॉर्म में यहाँ दिखाया हुआ है, तो जहाँ आपका सिग्नल 1 जा रहा है
उसके अपोजिट में जहाँ वो ओ पीरियड आ रहा है वहां पे हमने क्या भेजा, इंटरलेव किया सिग्नल टू का सैंपल क्या किया, इंटरलेव किया है। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में सिग्नल टू का, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में सिग्नल टू का। इट मीन जो बैंडविड्थ आपकी यूटिलाइजेशन में नहीं आई उसको आपने इंटरलेविंग करके, सेकंड सिग्नल की इंटरलेविंग करके उसको क्या कर लिया, इंटरलेव कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड योर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. So here we use the block diagram of your time division multiplexing. We can use the various LPF filter which can carry your various signal from X1T to XNT. Clear? Here we use a one commutator at the transmitter side. Again, before transmission into your channel, you can use a PAM modulator, and after receiving the receiver side, you can use here PAM demodulator, and one decommutator also use. ठीक है, and also your original signal recover with the help of receiver side. You can again use various LPF filter, and you can getting at your original output at your second LPF filter. Clear? So here the LPF filter convert your input into your band limited signal, and also provide your anti-aliasing, means the various signals that will be not merged between each other. So that merging phenomena will be cancelled out with the help of your LPF filter. Here we use our commutator. So commutator, that is a type of switch which can synchronously switch at पोजीशन, सपोज पहले पोजीशन 1 पे होगा, फिर पोजीशन 2 पे, फिर पोजीशन n पे, अगेन स्टार्ट फ्रॉम योर ओरिजिनल 1. फिर आपने क्या किया, अब ये ध्यान में रखना कि अगर आपने यहाँ पे x1t ट्रांसमिट किया था तो यहाँ पे आपको रिसीवर साइड पे x1t ही मिलना चाहिए. तो उस कम्यूटेटर जो स्विच यूज किया हुआ है, कम्यूटेटर एंड डिकम्यूटेटर, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कि अगर इनपुट साइड पे आप x2 ले रहे हो तो आउटपुट साइड पे भी उसका ओरिजिनल क्या आएगा, x2 की फॉर्म में आएगा. अगर आपने इनपुट साइड पे x1 लिया तो क्या आएगा, आउटपुट साइड पे x1 ही आएगा, एज पर योर सिंक्रोनाइजेशन फिनोमेना. क्लियर? So here we show the commutator one revolution from your x1, x2, x3 up to xn. That show your frame, and that frame is called your one revolution covered by your commutator. So bandwidth in your TDM as per your frame, that is omega 1 to omega n. So here we can define the bandwidth in the form of omega from I to n omega I. So you can define the TDM as per your PAN. And lastly, we discuss the topic here that is the most important topic of this all of this video, that is called your aperture effect. What do you mean by aperture effect? ये जो अपर्चर इफेक्ट आता है वो आपका फ्लैट टॉप सैम्पलर के अंदर आता है. तो फ्लैट टॉप सैम्पलर को अगर आप उसके आउटपुट आपने जी ऑफ ओमेगा की फॉर्म में निकाली थी, उसको मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन की फंक्शन की फॉर्म में लिख रखा है, दैट इज इक्वल टू ईयर समीशन ऑफ n माइनस इनफिनिटी एफ एस एक्स एफ माइनस एन एफ एस इंटू में एच एफ आपका यहाँ पे इम्पल्स ट्रेन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? और ये आपका इनपुट फंक्शन है. क्लियर? तो अब आपने क्या किया, वही सेम चीज मैंने यहाँ करके दिखाई हुई है. आपका जो ये इम्पल्स फंक्शन है और ये आपका क्या है, स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आउटपुट आ रही है किसकी, जब आपने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डन किया है. लाइक अपर्चर इफेक्ट में ये कहता है कि हमने कहा है कि जो फ्लैट टॉप सैम्पलर्स के जो फ्लैट में कई बार आपकी नॉइज आ जाती है, तो जब आप उस नॉइज को एक्सट्रैक्ट करते हो एट द रिसीवर साइड पे, तो कई बार आपका सिग्नल भी साथ में क्या हो जाता है, अटेन्युएट हो जाता है. ठीक है? उस टाइम में क्या करता है कि जब आप उस ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करते हो एट रिसीवर साइड पे, तो आपने जो इनपुट पे ओरिजिनल सिग्नल दिया था और जो रिसीवर साइड पे आप दोबारा रिकवर कर रहे हो, उन सिग्नल के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे. ठीक है? उन डिफरेंसेस को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर इफेक्ट. क्लियर? तो मैंने कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस शो कर रखी है अपर्चर इफेक्ट की. तो उस अपर्चर इफेक्ट को रिकैंसल आउट करने के लिए आप क्या लगाओगे, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर जो आपने एलपीएफ यूज किया है उसके आगे इक्वलाइजर लगा देना. इक्वलाइजर लगाने से क्या होगा कि जो पार्ट आपका यहाँ रिकंस्ट्रक्टर फिल्टर के बाद जो का पार्ट आपका रिकवर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपने जो सिग्नल इनपुट पे दिया था और जो आउटपुट पे रिकवर होके मिला उसमें आपने कुछ डिफरेंस नोट किए हैं, वो डिफरेंस आपका इक्वलाइजर क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा. so that will be show your PAM signal. So I will end my video here. So today I am cover various topic, so in which the bandwidth of your you can say PAM signal is very much important topic for these, and TDM is also. कई बार इस तरह आ जाता है कि write a short note on TDM, aperture effect, or either for your sampling theory.
ये इसमें जो भी मैंने चीजें अच्छे से बताई हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ ऑफ एम सिग्नल, तो इसके ऊपर भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, यू कैन प्लीज आस्क मी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो।